पिटिशंस दायर करते हैं, केस लॉ दायर करते हैं, ये हमारे देश के न्यू एज फ्रीडम फाइटर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें एक बेकार एनवायरनमेंट से बचाते हैं। पॉल्यूशन से बचाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और केस जीत करके सुप्रीम कोर्ट से ऐसी गाइडलाइंस लेकर के आते हैं जिसके थ्रू आप और मैं इस देश में राजी खुशी अच्छे से अच्छे एनवायरनमेंट में रह पाते हैं। सो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके पास ओपन हैं अगर आप अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट करते हो तो, बशर्ते आप आइडेंटिफाई कर लो कि इसमें से आपके लिए सूटेबल क्या है। Once you have identified your legal ikigai, you are through, you will be on the right track and you will know कि मुझे आगे लाइफ में अपनी खुशी कहां से डिराइव करनी है। अब बात करते हैं कि जज साहब जो होते हैं, एक जज का क्या बेनिफिट होता है या एक जज सोसाइटी में किस प्रकार से डिफरेंस लेकर के आता है। अब जुडिशरी के बारे में जब मैं बात करूं तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, और जहां तक आपको लगता है कि यार जज का काम सिर्फ जजमेंट देने का है, तो ऐसा नहीं है। जब एक व्यक्ति देता है तो वो क्या क्या चीजों को आधार बनाता है और साथ ही साथ उसका जजमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। अब जरा देखिए, सबसे पहले तो दे इम्पार्ट जस्टिस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सॉरी They impart justice and maintain law and order while interpreting the laws created by the legislature. हमने सुना होगा ना, 3 विंग्स ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि सरकार की 3 भुजाएं हैं। कौन कौन सी? नंबर वन इज लेजिस्लेचर, नंबर 2 इज एग्जीक्यूटिव और नंबर 3 इज जुडिशरी। यहाँ पे निकोल ने एक सवाल पूछा, व्हाट्स द कनेक्शन बिटवीन लॉ एंड फ्रीडम फाइटिंग? I'll tell you. You must have heard the name Sardar Vallabhbhai Patel. You must have heard the name Pandit Nehru. You must have heard the name Mohandas Karamchand Gandhi. These are all lawyers. These are all lawyers and advocates. Why so? इन सभी लोगों ने लॉ किया, तो ये हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स कैसे बन गए? क्या बेनिफिट हुआ? ये किस प्रकार से फ्रीडम फाइटर होते हैं? जरा इस बात को समझिए। जब आपको लॉ की समझ होती है, when you know the law, you know the society. When you know the society, you are the best person to work for the benefit of the society. Nicole, I hope you got your answer. The law and new age freedom fighting, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। Reason being, you might have heard this term. No, not a problem. You might have heard this term, public interest litigation, PIL. Now, there are people, there are advocates, there are firms, there are individuals who tend to file PILs on a regular basis in the courts. You must have heard, or you may not have heard, the name of a case, Pandit Parmanand Katara versus Union of India. It was basically a PIL which was filed against an accident and the approach of hospitals to not to treat a victim before a criminal procedure or an FIR is started. मतलब भाई आपके सामने एक मरीज आया है और आप उस मरीज को ट्रीट करने से मना कर रहे हो, ये क्या करके कि जाओ पहले FIR लिखवा के आओ. In the meanwhile, the patient dies. Now, Pandit Parmanand Katara versus Union of India gives you a standard that yes, even if a patient has come and no criminal procedure has yet started, let's say there is a patient who has come due to an accident, a road accident. अब आप FIR लिखवाने जिंदा मर जाएगा, तो it is the duty of the hospital, it is the duty of the hospital staff, management and the doctor to treat the patient first, to provide the first aid first, and then move towards the entire criminal procedure. So this is the point, Nicole. This is the whole idea that law and freedom fighting is not just about getting freedom from a colonization. It's not colonization that you need freedom from. You need freedom from your whole idea of living in a society. You need freedom from the fear of the fact that the environment is getting deteriorated. You need freedom from the idea that I am drinking a polluted water. You need freedom
from the idea that I'm inhaling basically a very bad oxygen. This is how you become a new age freedom fighter, because when you know the law, you know the society, you can reach towards the court, may it be the high courts, may it be the Supreme Court, and you can raise the concerns that, sir, this industry is causing so much trouble to the environment. This is the person or an industry which is creating a lot of nuisance. Somebody is creating air pollution, somebody is creating water pollution, somebody is creating noise pollution, and we need to treat that. That is why I have called you a new age freedom fighter. I hope that might have worked for you. If not, you can still relate your question. You can ask your question. Let me just proceed with the entire webinar first. Okay, chalo. Now, let's have a look at it. So one, a judge actually just not imparts, just not, he's the one who passes justice. Secondly, he's the one who interprets the law. Secondly, they maintain the system of check and balance between all the organs of government. It is the judiciary that ensures that legislature apni na chalaye and executive tyrannical ना हो जाए. So इन सारे organs के बीच में check and balance बिना करके रखने का जो एक burden है या एक responsibility कह सकते हैं, वो judiciary पे होती है. Next, being an independent government body, nobody can challenge their authority. Nobody has the right. No minister, no PM, no president, no governor, no attorney general, nobody holds the right or the power to challenge the authority of the judiciary. If a judge has passed a judgment, he is only responsible to his seniors and nobody else. आगे बढ़ते हैं. इसके बाद, how do the judges make a difference? Fourthly, they hold a prestigious, they hold a prestigious position in society which is equivalent to UPSC officers. Thereby, they are the ones who influence the society in the right direction. वो पूरे के पूरी सोसाइटी को, पूरे के पूरे समाज को एक सही दिशा देते हैं, एक सही डायरेक्शन देते हैं. साथ ही साथ में they hold a secured and convenient lifestyle, even more influential and desirable by the lawyers of this country. It is not just the job, it is obviously a convenient lifestyle for the judges that actually inspires a lot of students, lot of lawyers, lot of advocates to be a judicial officer in this country. एक अभी recently एक web series आई थी on Netflix. You might have heard the name. अगर आपने देखी है तो मुझे बताइएगा. There was this recent series, एक नई बढ़िया सीरीज आई थी, उसका नाम था मामला लीगल है. मामला लीगल है. नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई थी. नाम सुना आप में से किसी ने? Have you heard this name? They can be challenged. Don't worry, Nicole. It can be challenged in the, if a magistrate is a wrong judgment, obviously it can be challenged in the higher courts, in the appellate courts first. Because you might get confused between higher court and higher. वाणी भानु ये लोग बता रहे हैं, इन्होंने कहा है कि भाई we have heard मामला लीगल है. Now मामला लीगल है, why am I giving this example? Because in मामला लीगल है, the main protagonist, ठीक, the main protagonist played by Ravi Kishan, he is actually an advocate. He's actually an advocate, but at the end of the series, he chooses to be a judge. याद है किसी को? देखा होगा ना? बंदा शुरुआत से लेकर के एंड तक एडवोकेट है, लॉयर है, प्रैक्टिस कर रहा है, दलीलें दे रहा है, कोर्ट में जाकर के प्लीडिंग्स कर रहा है, लेकिन अच्छा इलेक्शंस भी लड़ रहा है, सब कर रहा है, लेकिन एंड में जाके he chooses to be a judge. What does it show? जज होना मात्र आपको डिसीजन देने का पावर नहीं देता. जज होना आपको एक ऐसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देता है, एक ऐसा स्टेटस इन सोसाइटी देता है जिससे आप लाखों लोगों को इंस्पायर करते हैं. And that is how the society actually grows. Next, in the courtroom, they exercise complete autonomy in their work and have a proper work-life balance. ये होता है. देखो,
वर्क लाइफ बैलेंस, कई बार स्टूडेंट्स को एंड बहुत सारे लॉयर्स को ऐसा लगता है कि यार वर्क लाइफ बैलेंस जैसी कोई चीज नहीं होती. यस, इट्स ट्रू, देयर इज नथिंग लाइक वर्क लाइफ बैलेंस, दैट्स करेक्ट. फिर व्हाई हैव आई पुट दिस पॉइंट ओवर हियर? उसके पीछे रीजन ये है कि एटलीस्ट द जजेस or any public servant for that matter, they know and they have a schedule which they know that they have to follow. के बीच का बेसिक डिफरेंस होता है उसका रूटीन, उसका एक शेड्यूल, उसकी छुट्टियां, उसकी वेकेशंस, एंड दैट इज हाउ actually the entire work life balance of not just judicial officers but advocates also work. And अगर आप अच्छे हो अपने प्रोफेशन में, अगर आप इकिगाई पे वर्क कर रहे हो, तो ट्रस्ट मी, इवन अ 6 hour sleep और अ 7 hour sleep is sufficient for you. आप 6 घंटे सो करके भी बहुत ही एक्टिव रह सकते हो, 7 घंटे की नींद लेकर एनर्जेटिक रह सकते हो, इफ यू आर लाइकिंग योर वर्क. I'll give you my example. I slept at 1 AM yesterday. मैं कल रात को 1 बजे सोया हूं और मैं सुबह 6:30 बजे का उठा हुआ हूं. And it's very normal for me. मैं डेली ही 5.5 घंटे, 6 घंटे, 6.5 घंटे सोता हूं. ज्यादा कुछ नहीं करना होता. I'm just passionate about teaching. That's it. Because my ikigai lies in teaching. आपका हो सकता है कॉर्पोरेट में हो, आपका हो सकता है जुडिशरी में हो, आपका हो सकता है लिटिगेशन में हो, और उसी के बारे में बताने के लिए ये पूरा सेशन रखा गया था. ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट 7, 8, 9, 10 भी देख लेते हैं कि व्हाट इफेक्ट और व्हाट पॉजिटिव इफेक्ट डज अ जज हैज ऑन द सोसाइटी. नंबर 7, द जजेस आर ओनली आंसरेबल एंड नोबडी एल्स, सो इंडिपेंडेंस पूरी हो गई. नेक्स्ट, the structure of a judge ensures that they not only live a prestigious but also a comfortable life. देखिए, सिर्फ रेस्पेक्ट का क्या करेंगे? Let us be practical. You want to be rich, you want to have a very comfortable life, and that is what you actually get from judiciary. आपको सोसाइटी में एक स्टेटस भी मिल जाता है, आपको मनी भी मिल जाती है, आपको पावर भी मिल जाती है, एंड प्लस ऑब्वियसली आपको फेम भी मिलती है ऑफ बीइंग अ जज. Apart from that, judges are the real Bhagya Vidhata of every single citizen of this country. Reason being, when you are holding the job of a magistrate, you get to decide to whom you will be sending to the prison. भाई, आप डिसाइड कर सकते हो कि किसी व्यक्ति को आपको 1 महीने की जेल भेजना है, 2 महीने की जेल भेजना है, 2 साल की जेल भेजना है. जब प्रमोट होके जाओगे तो 3 साल की जेल भेजोगे, 7 साल की जेल भेजोगे. While you are a session judge, you might give a life imprisonment to somebody. You might give a death sentence to somebody. So you are actually deciding the future of the country. क्योंकि कंट्री का कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके सामने खड़ा है, आप उसकी लाइफ एंड डेथ का फैसला कर सकते हो. इतना पावर आपके पास होता है, इतना स्टेटस आपके पास होता है, इतना ज्यादा हम कह सकते हैं कंट्रोल आपके पास होता है. एंड लास्टली, judicial officers command respect and are the true interpreters of law. It is actually the judicial officers who give recommendation. आप लोगों में से किसी ने, मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा, मुझे बताइएगा प्लीज, आप लोगों में से किसी ने विशाखा गाइडलाइंस का नाम सुना है? Have you heard about this term? विशाखा गाइडलाइंस कभी सुना हो? निर्भया गाइडलाइंस, have you heard this? What does Bhagya Vidhata means? Somebody who creates future. Vidhata means God, Bhagya means future. So God of future of the country. अगर आपने विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का नाम सुना है, कॉन्ग्रेचुलेशंस. विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान इज एक्चुअली द केस जिसने हमारे इंडियन पीनल कोड को एक रिकमेंडेशन आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि भाई देयर शुड बी गाइडलाइंस फॉर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेस. कुछ ऐसे गाइडलाइंस होने चाहिए जिससे कि महिलाओं को जो उनके साथ यौन उत्पीड़न किया जाता है उनके वर्क प्लेस पे उसको रोका जा सके. एंड वही चीज यहाँ पे होल्ड की गई. अल्टीमेटली जो रिकमेंडेशन 1999 में आए थे ना, उन्हीं को इंक्लूड किया गया था इन द 2013 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट. और फिर वही आईपीसी में 354A, 354B, 354C, सेक्शन 354D में आपको प्रोवाइड किया गया. सो दैट इज व्हाई. एंड ये गाइडलाइंस आई कहां से? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से.
सो जुडिशरी ये करती है, जुडिशरी लॉ नहीं बना सकती, लेकिन जुडिशरी लॉ को इंटरप्रेट करके रिकमेंडेशंस दे सकती है जो अल्टीमेटली लेजिस्लेचर के द्वारा अडॉप्ट किए जाते हैं और फिर उनको लेजिस्लेट किया जाता है, यानी कि उनको लेजिस्लेशन फॉर्म में लोगों तक पहुंचाया जाता है। सो ये आपका रोल होगा एज अ जज। एज अ जज दिस इज व्हाट यू विल बी डूइंग। ये है भाई जज का काम, जज की पावर। This is the reason why I actually came into this profession. I could have been a judge. आप जज बनना इतना ही अच्छा है, तो why are you not a judge? Yes, होता है. I was a great student. I'll be very honest on this point. Yes, I was a good student. I was a university topper of my Barkatullah University from Bhopal. Yes, student, and I know that. I would have made a very good judge, but I'm making a better teacher. Reason being, अगर मैं जज बनता तो जाहिर सी बात है I would have made only one person a judge. But me being a judge now, me being a teacher now, I'm giving almost hundreds of judges every year across India. मेरे स्टूडेंट्स हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, दिल्ली, उत्तराखंड, झारखंड, आपका बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, Odisha, West Bengal. I've got students all over India. And every year, close plus students, they become judge across entire state judicial services. I'll give you a very brief example. Yesterday itself, one of my student has become a judge in Bihar Judicial Services with rank 18. अभी कल ही एक स्टूडेंट 18th रैंक लेकर के आए. And this is what I and my entire team of Super Coaching Judiciary at Textbook, they help you with in your preparation. So, अब coming back to your questions, आपके questions पे आने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि I will be teaching, I will be taking care of certain subjects starting with BNSS from 1st of December. 1st December से आपको मेरी क्लासेस मिलने वाली है. फर्स्ट तो क्या, क्योंकि फर्स्ट को संडे पड़ रहा है. 2nd दिसंबर से आपको मेरी क्लासेस मिलने वाली हैं फॉर BNSS. दिस इज माय टीम फॉर द लेजेंड्स बैच. द एंटायर सुपर कोचिंग जुडिशरी हैज कम अप विद अ लेजेंड्स बैच फॉर you guys, for everybody across India, and we are teaching you guys for your judicial services preparation. We have Devashish Pandey sir, Anup Upadhyay sir, and me, Shubham Upadhyay. And these are the features of the batch, as you can see on your screen for yourself. Live classes, mock tests, study notes, practice question, interactive mentorship sessions, and all of this according to the new criminal laws. चाहे फिर वो BNS. So you can definitely think of joining. अगर आपका प्लान जुडिशरी का है तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपका जुडिशरी का प्लान नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज स्टिल यू गेट टू अंडरस्टैंड योर इकिगाई. आप अगर अपना इकिगाई पकड़ लोगे तो ये पूरा वेबिनार जो है वो फ्रूटफुल निकल जाएगा. अगर आप इकिगाई पकड़ लेते हैं, चाहे जुडिशरी हो, चाहे लिटिगेशन हो, चाहे फिर वो कोई भी फील्ड हो लॉ की, लेकिन इफ यू आर एबल टू क्रैक योर इकिगाई, you are going to be a very good citizen of this country, and obviously a very powerful citizen of this country. The choice is yours, and obviously, like I say, the manifestation is the key. Simple. आपको सोचना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है. सभी लोगों के लिए, आप सभी जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशल क्या है वो स्पेशल गिव अवे, उसके लिए यू विल हैव टू गो थ्रू द QR कोड. आप अपने मोबाइल फोन्स के थ्रू, अपने डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू आराम से QR कोड स्कैन कर सकते हो. डोंट वरी, ये फोन पे या भारत पे का QR कोड नहीं है,
It's obviously a giveaway, free giveaway for every single student who is preparing for judicial services. आप आराम से giveaway डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं. एक गाइड है जिससे आपको थ्रू आउट प्रिपरेशन का एक मास्टर प्लान प्रोवाइड किया जाएगा कि आप जुडिशियल सर्विसेज को, मे यू बी टारगेटिंग महाराष्ट्र, सॉरी, may you be targeting Haryana, may you be targeting Delhi, may you be targeting any state judicial services, doesn't matter. आपकी preparation को this giveaway, this special giveaway will be helping a lot. Now, my dear students, coming back to your questions, यहाँ पे ठीक है. Just a second, शुभम सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू. कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो मोबाइल से ज्वाइन किए होंगे, तो मैंने चैट बॉक्स में लिंक डाल रखा है इसी गिव अवे का. तो काइंडली फिल दिस गिव अवे गाइस, एंड एज सून एज यू हैव फिल्ड इट, काइंडली राइट डन इन द चैट बॉक्स. सो इट विल जस्ट हार्डली टेक 5 seconds to fill it. So till that time, Shubham sir will come in. Okay. Yes, Mohit has already done it. More guys, kindly fill it. So whosoever has joined it from their mobile phone, जो भी अपने मोबाइल फोन से ज्वाइन किए हैं, तो चैट बॉक्स में मैंने ऑलरेडी ये लिंक दे रखा है, लिंक से भी आप कर सकते हैं. ठीक है शुभम सर, नाउ यू कैन प्रोसीड. ओके, सो गाइस फॉर्म फिल कर दो. अच्छा हुआ विवेक सर ने बीच में टोक दिया, क्योंकि मैं बोलता जाता. लाइक आई सेड, आई एम अ पैशनेट टीचर. सो do fill the form, do get the ebook. It is important for you that you get the right guidance, and the entire purpose of this session is to give you right guidance, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो. It's not just judiciary. What I want as a teacher for is from my students कि भाई तुम लोग सक्सेसफुल हो जाओ. अगर आप सक्सेसफुल हो तो मेरा टीचर होना जो है वो सार्थक हो जाता है. ठीक. So let's begin with the questions right away. Sakir, you have raised hand. Please यार माइक ओपन करो, बताओ what is the doubt. साकिर ने हैंड रेज किया हुआ है, एंड वी आर एबल टू सी इंडिया कोर्ट एज वेल. इंडिया कोर्ट आपने भी हैंड रेज किया हुआ है. इफ यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज आप बोल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं. नो प्रॉब्लम एट ऑल. चाहे तो कैमरा भी ओपन कर सकते हैं. सर मैंने लैपटॉप से ऑन किया था. इसमें ये मैं मेरा एक स्टार्टअप है कंपनी के तौर पे, मैंने राहुल सर से बता रखा है, तो वो मेल आईडी इस पे चली गई थी इंडिया कोर्ट वाली. अच्छा, बताइए प्लीज. सर मेरा ये पूछना है, एक सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था कि कोई भी एडवोकेट ऐड नहीं कर सकता अपने प्रोफेशन की. तो ऐड में क्या क्या नहीं कर सकता? देखो, अगर कोई भी एडवोकेट है, आपने नोटिस किया होगा. आपका नाम प्लीज? शिवदत्त. शिवदत्त सर. शिवदत्त नहीं सर, शिवदत्त. अच्छा, शिवदत्त जी. हाँ जी सर. तो शिवदत्त है. बेसिकली होता ये है कि जो भी व्यक्ति एडवोकेट बनता है, देयर आर बेसिकली 2 प्रोफेशंस. 3 है वैसे, बट देयर आर बेसिकली 2 प्रोफेशंस जिनको अपना एड देने का वो नहीं है, मतलब अथॉरिटी नहीं है. नंबर 1 आर एडवोकेट्स, नंबर 2 आर सीए. इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के भी एड्स देखने को नहीं मिलते. हालांकि डॉक्टर्स के एड मिलते हैं, एडवोकेट्स के नहीं मिलेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नहीं मिलेंगे. सो कौन कौन से ऐसे एड्स होते हैं जो कि एडवोकेट्स कर सकते हैं? आपने नोटिस किया होगा जब भी कोई आप कौन से शहर से हैं शिवदत्त? सर मैं यहीं से हूँ, पलवल से. पलवल से ही है. तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई त्योहार आता है, जब भी किसी प्रकार का कोई बड़ा महोत्सव आता है, तो उस टाइम पे एडवोकेट्स के बधाई संदेश आते हैं. नोटिस किया कभी? बधाई संदेश आते हैं, क्योंकि डायरेक्टली एडवोकेट्स अपना प्रमोशन नहीं कर सकते. सो व्हाट दे डू इज दे डू समथिंग व्हिच वी कॉल एज सरोगेट प्रमोशन और सरोगेट एडवर्टीजमेंट. सो अगर मान लीजिए कि कोई एडवोकेट है जो कि ये करें कि भाई वो जा करके एक इश्तिहार दे दे न्यूज़पेपर में दैट आई एम सो एंड सो एडवोकेट, आई स्पेशलाइज इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मैटर्स, और क्रिमिनल लॉ का मैं एडवोकेट हूं, या सिविल लॉ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मैं एडवोकेट हूं, टैक्सेशन आजकल काफी वाइब्रेंट टॉपिक है, मैं उसका एडवोकेट हूं. तो ये एड जो है वो एडवोकेट्स रूल्स कोड ऑफ कंडक्ट में ब्रीच माना जाता है. और एक बार नहीं, कई बार इस पे बहुत ज्यादा जो स्टेट बार काउंसिल्स और डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल्स हैं उसको लेकर के स्ट्रिक्ट रहती हैं, और अगर कंप्लेंट होती है तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है. सो इसीलिए व्हाट दे कैन डू. अब ये तो बात हो गई कि क्या नहीं कर सकते. डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते कि आप एडवोकेट हो, आपका स्पेशलाइजेशन ये है आपने, क्योंकि आप अगर ये सोचो शिवदत्त, देयर आर एडवोकेट्स हु आर विनिंग केसेस एवरी डे. वो अपने बंदे को बेल दिलवा करके लाए हैं जो मर्डर केस से छूटा है, रेप के अक्यूज को उन्होंने लेट्स से फॉर एग्जांपल रिलीज दिलवाया है. तो ऐसे केसेस में ऑब्वियसली इट इज एन अचीवमेंट फॉर देम. और अगर इस अचीवमेंट को वो एड के फॉर्म में सर्कुलेट करने लग जाए तो होगा ये
कि ऐसे तो बहुत सारे एडवोकेट्स बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स दे देंगे। इसी चीज से बचने के लिए एक सिंपल चीज की जाती है, सरोगेट प्रमोशन, जिसके थ्रू बधाई वगैरह या और कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है। एक चीज मैं और आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप चाहें तो, देर आर सर्टेन वेबसाइट्स, लाइव लॉ है, बार एंड बेंच है, SCC ऑनलाइन है, जब आप विजिट करोगे, आपने एक नाम सुना होगा legalservicesindia.com, आप इन वेबसाइट्स पे जाकर के देखोगे तो कंसल्टेंसी फर्म्स का ऐड आता है। कंसल्टेंसी फर्म का मतलब होता है मैं एडवोकेट ही हूं, लेकिन आपको खाली लीगल एडवाइस देने के मैं पैसे चार्ज कर रहा हूं। फिर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे से अपना केस लड़वा सकते हैं। दिस इज हाउ द एंटायर एड थिंग वर्क्स अराउंड द एडवोकेट्स। और बताओ। तो सर मैं भी ऐसे ही ऐप पे और ऐसी कंपनी पे काम कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि ऐसा मतलब कुछ आगे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ऐसे? अगर डायरेक्ट ऐड है ना शिवदत्त, तो मैं डायरेक्ट नहीं ऐड को नहीं, अवॉइड डायरेक्ट करने को सर बोलूंगा। डायरेक्ट ऐड नहीं होगी उसमें, अलग से ऑप्शन होगा मतलब उसमें सारी चीज होंगी। जैसे मान के चलो हम पढ़ते हैं तो सारे हम्म, बच्चों को कोई बुक वगैरह की दिक्कत होती है, वे डायरेक्ट जितने भी हमारे सारे मिलेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सारे ऑर्डर मिलेंगे। हमें ना भाषा की सबसे बड़ी दिक्कत होती है। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी ऑर्डर होता है तो वो इंग्लिश में होता है, इंग्लिश में होता है, सही बात है। और हमारे हरियाणा हाई कोर्ट में होता है तो हिंदी, वो भी इंग्लिश में होता है। राजस्थान में आप हाँ, जाओगे तो वो हिंदी में होगा, आप यूपी में जाओगे तो हिंदी में। हर स्टेट में कोई भी वो होगा तो वो उनकी अलग भाषा होगी। तो हाँ, मैं इस भाषा के लिए ही कह रहा हूँ, उसी में मैं उसमें एक ट्रांसलेशन करके उसी को ऑर्डर को, ताकि हर इंसान उस ऑर्डर को पढ़ सके। बाकायदा उसकी वीडियो भी बना के डालूंगा ताकि वो वही सेम चीज वो सुन सके। जैसे हमारे गांव देहात में लोग होते हैं, उनको समझ नहीं आता कि क्या हुआ है, किसी का सही है। कोई केस चल रहा है, जज ने हाँ, कुछ बोला, वकील ने कुछ बोला, वो जेल चला गया। सही बात आपने है। भी सुना होगा वो। सुना है। जी, तो ये मैं हो, इसी चीज को लेकर कुछ सोच रहा हूँ सर, और इसी बिल्कुल पे मैं करो। काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा आइडिया है शिवदत्त, यू शुड एक्चुअली डू दिस। एंड एक चीज ये है कि जनरली जो हाई कोर्ट्स होते हैं या सुप्रीम कोर्ट होते हैं, अब तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स का ट्रांसलेशन देने का ऑर्डर कर दिया है। ये भी सुप्रीम जी कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है जिसमें वो ट्रांसलेशन की बात कर चुके हैं। लेकिन इन्हीं ट्रांसलेशन को स्टूडेंट्स तक और आम लोगों तक कैसे पहुंचाना है, वो काम आपके थ्रू हो जी सर, सकता मैं है। इसी एंड दैट चीज को सोच रहा हूँ। इज बेस्ट है, बेस्ट है। बहुत सही तरीका है, यू कैन एक्चुअली डू दैट। बस इतना ध्यान रख लेना कि जब एड वगैरह की कहीं पे भी बात हो रही हो तो सरोगेट ऐड रहेगा तो सही रहेगा। डायरेक्ट ऐड जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट के ब्रीच में आ जाएगा। नहीं सर, इसको तो मैंने छुपाने का सोच लिया है। मैं इनको इसको अलग से मतलब साइड में रहूंगा। किसी को अगर लीगल वो चाहिएगी तो मैं इसमें सीधी सी बात है, अगर मैं इसमें AI फंक्शन रखूंगा तो हमारे सारे बेरेक्ट या सारे ऑर्डर में से कहीं ना कहीं कोई चैट पूछेगा तो वो बता देगा, और उससे भी उसका वो नहीं हो रहा है। जैसे मान के चलो मुझे कोई अपना क्वेश्चन पूछना, अब मेरा क्वेश्चन किसी से रिलेटेड नहीं है, तो फिर मैं लास्ट में ऑप्शन आ जाएगा भाई आपको हमारी लीगल टीम से बात करनी है, तो उसके लिए अलग चार्ज होगा, बाकी सही है, जितनी भी चीजें सही है। आपको मिल जाएंगी। दैट्स, ये सही वे है। मतलब दिस इज, ये तो मतलब प्रॉपर है भाई, प्रॉपर है। आप सारे सारे नॉर्म्स को फॉलो करते हुए चल रहे हो। दिस इज व्हाट दे डू। ऐसे ही होता है वेबसाइट्स पे, ऐसे इसी प्रकार से किया जाता है कि हम एडवाइस आपको पूरी दे रहे हैं, आपको प्रॉपर एडवाइस मिलेगी। उस एडवाइस के बाद अगर आप चाहो तो आप हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हो। दैट दिस इज परफेक्ट। आई लाइक, इट्स अ गुड आइडिया। मैं विवेक सर को बोलूंगा कि आपसे फिर बाद में आफ्टर द वेबिनार भी हम कनेक्ट कर ले। अभी तो क्या है, टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, तो सभी से जी जी। थोड़ा थोड़ा सबकी बात सुननी जरूरी है। बट वेरी नाइस टू टॉक टू यू शिवदत्त, द आइडिया इज ब्रिलियंट। एंड आई होप कि विवेक जी, आप शिवदत्त जी से एक बार कनेक्ट करिएगा, क्योंकि ये हमारी सुपर कोचिंग जुडिशरी में और जुडिशरी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि जी जुडिशरी सर, के मैं एस्पिरेंट्स इसलिए। को, हाँ, जुडिशरी के एस्पिरेंट्स को तो बहुत समस्या जाती है, क्योंकि कंटेंट इंग्लिश का मिल जाएगा, हिंदी का नहीं मिलेगा। तो हिंदी का जी, कहाँ से मिले, तो उसके लिए शिवदत्त जी जो हैं वो अवेलेबल है। तो थैंक यू सो मच शिवदत्त। थैंक यू और सर, क्वेश्चंस भी मैं बहुत ले अच्छा लेता हूँ। लगा आपसे बात करके। मैं इसी पे कर रहा हूँ सर, जहां तक ये जल्दी हो जाए बस। चलिए, ऑल द वेरी और बेस्ट इसी के शिवदत्त। लिए वो गलती से वो मेल आईडी ऑन हो गई थी, मैंने अभी देखा था ये मेरी हाँ, इंडिया दैट्स, कोर्ट वाले कहाँ से आ गई। डोंट वरी, डोंट वरी। ऑल द बेस्ट शिवदत्त, ऑल द बेस्ट भाई। थैंक यू सर। हाँ जी, सो डू वी हैव एनी मोर क्वेरीज, एनी मोर क्वेश्चंस? From here, I can see a few people. Yes, let me just check. शाकिर लग रहा है भूल गए हैं कि उन्होंने हैंड रेज किया है. There are other students as well. Guys, you can check if you have any doubt, any query.
तो वो आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ में आप अपनी क्वेरीज को शायद अपने गूगल फॉर्म में भी रेज कर सकते हैं, बाद में मेरी टीम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी क्वेरी हो, कोई भी इशू हो रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड इवन विदाउट दैट, चिल एंड डू लेट मी नो आपके जो भी क्वेरीज हो। विवेक सर, आई बिलीव अब हम लोग रैप अप कर सकते हैं। राइट। सो गाइस, एनी मोर क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप इवन चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, इन केस अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है डायरेक्टली पूछने में तो, और एल्स विल रैप अप द सेशन। एनी मोर क्वेश्चंस गाइस फ्रॉम योर साइड? सो आई थिंक सो शुभम सर, दैट्स ऑल। परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। सो शिवदत्त, वेरी नाइस टू टॉक टू यू and I'll be connecting with you guys, the entire MVN University. Thank you so much for inviting me, and thank you so much for the opportunity. Thank you so much Varun Malik sir for giving us this platform, just so that हम बात कर सकें स्टूडेंट से, कनेक्ट कर सकें स्टूडेंट से, and I hope कि ये fruitful रहेगा आपके लिए to find your legal ikigai. Thank you so much. This is me, Shubham Upadhyay, signing off. This is my style. Tada and Jai Hind. Bye bye. Thank you so much, sir. Thank you so much, guys, and all the best for your future. And do fill this ebook form for the participation certificate as well as the free ebook, guys. So it's mandatory for everyone to fill it. So whosoever has filled it, kindly write done in the chat box, or else you can fill it. Thank you so much, guys. Thank you, sir.